پروردگار ہے، یہ رحم پروردگار ہے۔ امام نے فرمایا اس مقصد کے لیے پروردگار نے اس غلاف کو خلق کیا تھا، مگر کبھی کبھی تم شے رکھتے ہو اور دل پہ وہ غلاف چڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے شے بھول جاتی ہے۔ ہماری ذات پر پڑے ہوئے درود میں یہ کمال ہے کہ یہ ہر طرح کے غلاف اتارنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ امام نے فرمایا جو ہم پر درود پڑھے اسے نسیان نہیں ہوتا، استقبال میں آپ کھڑے بھی ہو جائیں تو حق سماعت ادا نہ ہو۔ امام نے فرمایا جو درود پڑھے اسے نسیان نہیں ہوتا۔ تو میں حیران ہوں درود پڑھنے سے نسیان نہیں ہوتا، جن پر درود ہے انہیں ہجیان کیسے ہو سکتا؟ جو درود نسیان نہیں ہونے دیتا، ہائے ہائے، جن کی حویلی پر پڑھا ہوا درود نسیان نہیں ہونے دیتا، اس حویلی کے سردار کو ہجیان کیسے ہو سکتا؟ جی بسم اللہ، عزت آل محمد کی قسم، وہ درود تھا، وہ چلتا ہوا درود تھا جسے سجدے کرنے کے لیے تازیانے کھانے پڑتے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، مصطفیٰ کی بیٹی آپ سے راضی رہے۔ وہ چلتا ہوا درود تھا جسے سجدے کرنے کے لیے تازیانے کھانے پڑتے۔ میں جہاں بھی گیا ہوں یہ تبرک، یہ امانت مومنین کی میں نے پہنچائی ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سے سامعین تک یہ پہنچ چکی ہو، لیکن جو سامعین جن تک یہ امانت نہیں پہنچی ان کی امانت ہے، ان تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ چلتا پھرتا درود ہے، سارے راستے میں جہاں بھی میرا امام سجدہ کرنا چاہتا تھا۔ ایک موقع ایسا آیا ہے، تاریخ نے لکھا، ایک موقع ایسا آیا کہ امام سجدہ کرنا چاہتے تھے اور امام دیکھ رہے تھے کہیں سے کچھ سایہ مل جائے۔ جہاں خیمہ نصب تھا، خیمے کی ایک طرف خیمے کا سایہ پڑ رہا تھا۔ امام نے کڑیاں سمیٹی، مصائب کے لیے بھی ضروری ہے کہ اونچی آواز میں پڑھا جائے۔ امام نے کڑیاں سمیٹی اور سائے میں آ کے میرے امام نے تکبیرۃ الاحرام کہی۔ اللہ کرے آپ یہ سمجھ لیں تو آگے پڑھنے کی ضرورت کیا ہے۔ امام حالت رکوع میں گئے، امام حالت سجدہ میں گئے۔ تاریخ درد کہتی میرے امام نے بھی پہلی تسبیح پڑھی تھی کہ ادھر قافلہ سالار نے اونچی آواز میں کہا الرحیل، قافلہ چلاؤ۔ قافلہ چلانے کا حکم آیا، ایک ملعون نے امام کے گلے میں پڑی ہوئی رسی کو کھینچنا شروع کیا۔ پھر تاریخ کہتی کتنی دور تک غیرتوں کا مارا ہوا زمین پہ گھسٹتا جا رہا تھا اور کہتا جا رہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ مصائب کے لیے بھی ضرورت ہے کہ اونچی آواز میں پڑھا جائے۔ جسے آنسو نصیب نہیں ہے، عزادار دیکھتے ہیں، بہت سے مومنین دیکھتے ہیں کہ مومنین رو رہے ہیں، وہ رونا چاہتے ہیں، آنسو نہیں آتے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ آنسو کرم ہے مصطفیٰ کی بیٹی کا۔ اگر کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں آتے تو وہ مجلس میں آ کے پہلے یہ دعا مانگا کرے کہ بی بی مومنوں کو دیکھتا ہوں اتنے موٹے موٹے آنسو ان کے گرتے ہیں، پاک زہرا میری آنکھوں کو بھی آنسو کی خیرات عطا فرما۔ یہ کرم ہے خدا کی قسم، یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے، جو چاہے گا اس کو بی بی عطا کر دے۔ اس لیے انہوں نے کہا رو نہیں سکتے تو رونے والی شکل بنا۔ معاشر میں یہ نہ کہنا آنسو میرے اختیار میں نہیں تھے، میں تو رونا چاہتا تھا آنسو ہی نہیں آئے۔ وہ فرماتے رونے والی شکل تو بنا سکتے تھے۔ امام کو کھینچا جا رہا ہے، زمین پہ گھسٹتے آ رہے ہیں اور سجدے کی تسبیحات مکمل کر رہے ہیں۔ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ،
होगा इससे बेहतर तौहीद का प्रचारक। इन्होंने ऐसी मुसीबतों में तौहीद सिखाई है। इनकी विलायत इसीलिए जरूरी है कि इन्होंने इतनी मुसीबतों में भी उसकी तौहीद सिखाई है। ये अमानत है, खुदा की कसम, ये बस वसूल कर लीजिए, आपकी ज़हमतें तमाम है। मखदूम कौनैन आपको सलामत रखे। 2018 में मैं कराची था, 5 मजालिस थी जमात-उस-सानी में, मखदूम आलमियान के अय्याम में, सूरह कौसर के उन्वान से मैं मजलिस पढ़ रहा था। मैंने देखा दौरान मसाइब एक मोमिन नौजवान वो खड़ा होकर जोर जोर से चेहरे पे तमाचे मार रहा था। लोग उठते थे, उसे पकड़ के बिठाते थे, वो फिर उठ के खड़ा हो जाता था, फिर जोर जोर से चीखें मारता था, चेहरे पे मातम करता था। अज़ादारों, मजलिस खत्म हो गई, मुझे लाकर उन्होंने कमरे में बिठा दिया। मेरे जहन में वही मोमिन, वही नौजवान था। कुछ देर गुजरी, मैंने बाहर शोर सुना, दरवाजे की ओर से मैंने देखा वही नौजवान है। उसे कुछ लड़कों ने बाजुओं से पकड़ रखा है और वो बाजू छुड़वा के अपना सर दीवार के साथ टकराना चाहता है। बड़ी मुश्किल से वो लड़के खींच के उसे लाए, मेरे साथ सामने कमरे में बिठा दिया। कमरे में या मैं था या वो था। ये हुसैनियत का मिंबर है और इससे मुकद्दस जगह कायनात में कोई खल्क हुई नहीं। मैं हुसैनियत के इस मिंबर से ये अमानत वैसे ही जैसे बात है मैं वैसे पहुंचा रहा हूँ आप तक। मेरे सामने वो नौजवान बैठा था, उसने एक ऐसी बात की है, मेरा जिगर खा गई है वो बात। आपको भी शायद सारी जिंदगी चैन से सोने न दे। बहुत देर वो मेरे सामने चीखे मार मार के रोता रहा। अज़ादारों, वो चीखे मारते मारते रुक के एक जुमला कहता था और जुमला कह के फिर चीखे मारने लगता था। सुनोगे वो जुमला क्या कहता था? चीखे मारते मारते रुक के कहता था, मोहम्मद की बेटी मुझे मुआफ कर देना, मैं थक जाता हूं। ये बात इस लायक थी कि हर ज़बान सीने पे हाथ मार के हाय रुक के, मोहम्मद की बेटी मुझे मुआफ कर देना, मैं थक जाता हूं। अज़ादारों, मैं उसे दिलासे देता रहा, बहुत देर मैंने उसे दिलासे दिए। बहुत देर के बाद उसकी आवाज कुछ मध्यम हुई, उसकी आंखों से आंसू जारी थे। अगला सवाल है जो खुदा की कसम जिगर खा गया है मेरा। बहुत देर के बाद उसकी आवाज थमी और मेरी तरफ देखे कहने लगा, मौलाना साहब मेरे दिल में एक सवाल है, मैंने बड़े उलमा से पूछा है, आज तक मुझे किसी ने मुतमईन नहीं किया, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई पूछो, जिस लायक मैं हूँ मैं कोशिश करूंगा जवाब देने का। अब सुनोगे सवाल अज़ादारों? देखे कहने लगे, मौलाना साहब मुझे सच सच बताएं, क्या खुदा वाकई इनसे मोहब्बत करता था? मैंने कहा भाई अल्लाह का इनसे बड़ा कोई महबूब नहीं था। कहते जी मेरा दिल नहीं मानता, लोग सकीना को तमाचे मारते रहे, खुदा देखता रहा। ज़ैनब के सर से चादर उतर गई, खुदा देखता रहा। अकबर के सीने में पर्ची उतर गई, खुदा देखता रहा। मैंने कहा नौजवान तेरा जज्बा सलामत रहे, असल में मसला ये था, इतना खुदा ने मांगा नहीं था जितना इन्होंने दे दिया था। खुदा तो रोकता रहा, हुसैन बस कर दे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। एक जुमला और सुन लीजिए, यही वजह है खुदा को रोकना पड़ा। हुसैन बस कर दे, ज़हरा के लाल बस कर दे। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नतु इरजई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया। बस कर हुसैन, तलवार नियाम में डाल। हुसैन ने तलवार नियाम में डाल दी और फिर खुदा की कसम ऐसे इम्तहान से गुजर गया ज़हरा का लाल। मैं बताऊं वो इम्तहान क्या है? जब ज़हरा का लाल इजाजत लेके मैदान की तरफ जा रहा था ना, यहाँ बेटियों के बाप तशरीफ फरमा है, मालिक सबकी बेटियों को सलामत रखें। परवरदिगार ने मुझे भी एक बेटी से नवाजा और जब से वो 4 साल की हुई है तब से मुझे सकीना का कुछ दर्द महसूस हुआ। तब से मैं दुआ मांगता हूँ, परवरदिगार हर ज़दार को एक बेटी जरूर अता कर ताकि वो ज़दार सकीना का दर्द महसूस कर सके। ज़हरा का लाल, मुझे खुदा की कसम है, छठे इमाम का फरमान है, जिस घर में कोई बाप बेटी को पाल रहा हो, हर रोज 70,000 फरिश्ता उस घर में उतरता है और रात तक उस बाप के लिए इस्तिग़फ़ार करता रहता है।
मालिक बेटी से नवाजे तो अज़ादार सकीना का दर्द महसूस करे। हम निकलते हैं ना घर से मजलिस के लिए, मालिक ने मुझे बेटी से नवाजा, बेटियां दामन पकड़ लेती हैं, बाबा नहीं जाने दूंगी। बड़ा मुश्किल होता है बेटी से दामन छुड़वा के जाना। और मैं कायनात कुर्बान करूं, अल्लाह जाने कितनी मर्तबा हुसैन सकीना से दामन छुड़वा के चला गया। ज़हरा के लाल ने सबको सलाम किया, मेरा आखिरी सलाम, मेरा आखिरी सलाम। ज़हरा का लाल ज़ीने ज़ुलजना पे बैठा, हुसैन इब्ने अली ने लगाम हाथ में पकड़ी। हुसैन लगाम खींचे और घोड़ा न चले, क्या ये मुमकिन है? लेकिन यहां यही कयामत हुई। हुसैन लगाम खींचते हैं, घोड़ा कदम नहीं उठाता। ज़हरा के लाल ने दाएं देखा, बाएं देखा, पीछे देखा, आगे देखा, कोई नजर नहीं आया। अब जो ज़हरा के लाल ने झुक के देखा, हुसैन इब्ने अली के घोड़े के सुमों के साथ सकीना लिपटी हुई थी और सिसकियां ले लेके रो रही थी। बाबा मैं जानती हूं तू जाएगा तो वापस नहीं आएगा, बाबा तू जानता है तेरे सीने पे सकीना को सुकून महसूस होता है। बाबा आज के बाद ये सीना सकीना को मुयस्सर नहीं आएगा, जो रोने के लिए आया है उसी के लिए है ये जुमला। अज़ादारो बाबा एक मर्तबा जाते हुए सीने पे सकीना को सुलाता जा। ज़हरा के लाल ने जीन छोड़ दी। अज़ादारो करबला की तपती हुई रेत पे ज़हरा का गरीब बेटा लेट गया, सकीना हुसैन इब्ने अली के सीने पे लेट गई। इतना सुकून आया सकीना को नींद आ गई। अभी सकीना की आंख लगी थी कि ख्वाब में मोहम्मद की बेटी आ गई। आवाज आई सकीना मैं मैदान में अपने लाल का इंतजार कर रही हूं, सकीना मेरे हुसैन को आने दे, मैं बालों से मक्तल साफ करके